Residents of Delhi NCR are waking up to a beautiful morning though, which is of a downpour and rainfall. But because there has been a constant rainfall for the past few hours, in fact through late night, early morning, there have been also a result of this sadly. Waterlogged roads, inundated streets, roads and blocked specifically for those heading out to office at this point. The roads were found blocked and there were waterlogging in several areas, and not just in Delhi, but adjacent NCR, which includes Noida, Ghaziabad, Gurugram as well. There were some vehicles also that were found to be stuck. So sadly, this is also exposing in many ways the drainage system in our urban cosmopolitan cities. A beautiful downpour that came in for the past few hours, but it has resulted to massive inconvenience to a lot of people on how they had to wade through waterlogged streets to reach to their destinations. Look at that. Women have to walk through neck-deep water. Vehicles that have to manage to not get stuck with their engines signing off with regard to the water on the streets. These are different streets. Remember, we tried to ascertain on the ground different locations, and it does look like the situation is there. So I can tell you that the downpour for now has been light. So in many ways, the rainfall has dipped. But because it had been pouring for the past few hours, it has led to this waterlogging. Doesn't it expose of how the infrastructure, while it is so developed in our cities, remember these are busy streets, busy intersection, arterial roads. Why is the drainage system so poor? Because how can just barely a few hours of rainfall that is expected in this season lead to this massive waterlogging? Will this be another political showdown? Was the desilting not done properly? Was the drainage system not okay in the first place? All right, so let me go across now on the ground, because Himanshu Mishra, come heat wave or rainfall, he's always there on the ground early morning. Himanshu, bringing you in this world in this first cup right now. क्या सिचुएशन है कि अभी भी बारिश हो रही है? क्योंकि मैं तो जब ऑफिस आ रही थी बारिश भी बहुत तेज थी और वाटर लॉगिंग भी मिला। बिल्कुल, देखिए बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश हल्की हो गई है। लेकिन जो बारिश सुबह आपने देखी, ये आप देखिए आईटीओ की तस्वीरें हैं, मेन आईटीओ रेड लाइट के पास की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है वो पूरा पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो पूरा हिस्सा है आप देखिए, ये पानी से पूरी तरीके से ये रोड कवर हो गई है। और कुछ गाड़ियां भी देखिए, वो सामने आप ऑटो वाले को देखेंगे, उसका ऑटो बंद हो गया है क्योंकि अंदर ईंधन तक पानी पहुंच गया है। और जो एक रोड बची है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए साइड में एक तरफ आ जा रहे हैं। और आप देखिए इसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो भले ही दूसरी तरफ से चले जाएं, लेकिन जो कार है या छोटी गाड़ियां हैं उन्हें अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो चूंकि वहां पर पानी ज्यादा है तो उसमें गाड़ी फंसने की संभावना है। तो ये आईटीओ की मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा हूं, और ये दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पर रोड के किनारे पानी दिखेगा। पिछली बार हमें याद है कि जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो क्या यहाँ पर कंडीशन थी। आप देखिए बाढ़ की वजह से ये पूरा इलाका आपने देखा था कि आईटीओ पर पानी सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे इलाके में पहुंचा था और ये पूरा इलाका डूब गया था। तो ये जो तस्वीर है कमोबेश वही तस्वीर दिखा रही है, पिछली बार की याद दिला रही है कि किस तरीके से पूरा आईटीओ डूब गया था। अभी हम रिंग रोड से आ रहे हैं, हमने देखा कि इंद्रप्रस्थ पार्क के पास भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आईटीओ ही नहीं, बाकी जगहों पे भी दिल्ली एनसीआर में ये हालात हैं? मैं नोएडा में थी, मुझे काफी जगह वाटर लॉगिंग दिखी। लेकिन ये मुझे बताइए, ये तो अभी 7 से 8 का जो है आवर है, ऑफिस आवर अभी प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होने की संभावना है कुछ घंटों में। बिल्कुल, देखिए अगर पानी नहीं निकलता और अगर दोबारा बारिश उसी तरीके से, क्योंकि देखिए बारिश बंद नहीं हुई है, अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश हल्की हल्की लगातार हो रही है। और अगर ये बारिश दोबारा उसी तरीके से होती है जिस तेजी से सुबह हुई थी, और थोड़ी देर में यहाँ पर क्योंकि गाड़ियों की लंबी लाइन लगने वाली है, ये मेन इंटरसेक्शन है, सामने से जो गाड़ियां आप देख रही हैं विकास मार्ग लक्ष्मी नगर की तरफ से पूर्वी दिल्ली से गाड़ियां आ रही हैं, तो यहाँ पर कुछ ही देर में गाड़ियों की लंबी कतार लग जाएगी। जो पानी अगर ये समय पर नहीं निकला, आप देखिए दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो ये सामने जो आयकर भवन है इसके अंदर पानी चला गया था। ये जो तमाम सरकारी ऑफिसेस हैं इन सब में अंदर पानी पहुंच गया था। तो देखना ये होगा कि क्या पहली बारिश में दिल्ली जिस तरीके से पानी पानी हो गई है, तो क्या कोई ऐसा तरीका निकलेगा कि दिल्ली वालों को
गर्मी से अगर राहत बारिश से मिलती है तो उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर आपको अंदाजा ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर देखिए कहाँ सड़क है। आप देखिए कहाँ पर सड़क है और कहाँ पे सामने की लेन है, आपको कहाँ से कट लेना है, ये कुछ भी ऐसे में समझ में नहीं आता। तो हादसे भी काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक तो गाड़ी संभाल के चलाना होता है। धीरे धीरे आप देखिए जिस तरीके से आपको लोग यहाँ पर लाइन में आते हुए एक सिंगल लेन में ट्रैफिक चल रहा है। वजह यह है कि बारिश का पानी, ये दिल्ली का मेन आईटीओ चौराहा है और यहाँ पे हर साल बारिश में लगभग यही चलिए तस्वीर हमें होती है। हिमांशु आप हर साल अपडेट इसी करते तरीके से रहिएगा और अपना ध्यान भी रखिए, बट दिस इज अ रिफ्लेक्शन people of Delhi, and I can tell you Delhi NCR looks absolutely beautiful and green, clean, specifically in the monsoon season, but because of this poor development, thoughtlessness in many ways, enough precautions not taken, drainage system not this proper as it's supposed to be. This is ITO, for those who may not know, who are not in Delhi. The ITO is the busiest and the most important intersection of Delhi. It connects borders, it connects different areas, it has the most VVIP connected arterial roads, and that's why you see this waterlogging in areas where it shouldn't be. We'll be tracking all the latest on that. Thank you very much, Himanshu.